Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Contemporary South Asia, and in the previous class we have completed our chapter, and now we will discuss the question answers, the questions which are given in your textbook. We will discuss all the questions. So first of all, we will see that there is a question like identify the country. It's regarding some clues are given and you have to identify the country. The informations are about which country. Like the first is the struggle among pro-monarchy, pro-democracy groups and extremists created an atmosphere of political instability. This was the situation prevailing in the country Nepal. So the first country about which we are talking is नेपाल, जहाँ पर कि ट्रायंगुलर स्ट्रगल चल रहा था. एक तरफ प्रो मोनार्की थे, दूसरी तरफ प्रो डेमोक्रेटिक थे और तीसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम माओइस्ट कहते हैं. ये तीनों का जो ग्रुप था वो काम कर रहा था. एंड देन द सेकेंड कंट्री अबाउट विच द क्लूज आर गिवन, a landlocked country with multi-party system, multi-party competition. तो ये जो लैंडलॉक्ड कंट्री है जहाँ पर कि मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, दैट इज भूटान. भूटान वो कंट्री थी जो कि जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है और वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम को स्टार्ट किया गया है. देन द थर्ड क्लू is the first country to liberalize the economy in South Asia. South Asia में वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार इकोनॉमी को लिबरलाइज किया? दैट इज श्रीलंका. And then the next question, in the conflict between the military and pro-democracy groups, the military has prevailed over democracy. वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर मिलिट्री और प्रो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इस कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री जो है वो प्रिवेल की है डेमोक्रेसी के ऊपर? दिस इज पाकिस्तान. But now the case of Pakistan is different because what we are seeing that in Pakistan there is democratic government for the last 12 years. वहाँ पर 2008 में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद से वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही हुए हैं और डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई है. तो सिचुएशंस आर चेंजिंग इन पाकिस्तान. तो ये जो हम कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रो डेमोक्रेटिक और मिलिट्री के बीच की लड़ाई होती थी और जिसमें जो प्रो डेमोक्रेटिक थे वही प्रिवेल करते, जिसमें मिलिट्री जो थी वो प्रिवेल करती थी, ये उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर जो कि 2008 के पहले वहाँ पर प्रिवेल करती थी. And now the next country, the next clue is centrally located and shares border with most of the countries of South Asia. The central location is of India. India is in the center of South Asia. और जो साउथ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो साउथ एशिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है. सो द E is India. Okay, and now we see the next clue. Earlier the island had the sultans as the head of the state. Now it is republic. पहले सुल्तान हुआ करते थे जिसको हम सल्तनत कहते हैं, and now it's a republic. So it is about, this information is about Maldives. Okay, and now the next clue is small savings and credit cooperatives in the rural areas have helped in reducing poverty. This is the case of Bangladesh. बांग्लादेश में जो कोऑपरेटिव सिस्टम हुआ वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसके कारण वहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिली है. तो ये कंट्री जहाँ पर स्मॉल सेविंग्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव से रूरल एरिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प मिला, दैट इज बांग्लादेश.
And now the next question, a landlocked country with a monarchy. तो ये जो लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसमें कि मोनार्किकल सिस्टम अब नहीं है, ये आपकी जो वी हैव द ओल्डर बुक, ओल्डर एडिशन है, अभी न्यू एडिशन इसमें नहीं आया है। तो ये नेपाल थी इन द प्रीवियस, मतलब 2015 के पहले की जो कंडीशन थी उसमें हम नेपाल लिखेंगे, बट अब जो है वहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये इस संदर्भ में हम जो ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंगली इट्स नेपाल, द लैंडलॉक्ड कंट्री विथ अ monarchy. Okay, so this is our first question, and now we will see the second question, and it's ki which of the following statement is wrong about South Asia. South Asia के बारे में जो statements कहे जा रहे हैं उनमें से कौन सा wrong है, which one is wrong. ठीक है, तो first statement is all the countries in South Asia are democratic. This is not true because there are some countries which are not democratic. Like there was problem in Pakistan, जब न तब वहाँ पर democratic rule का end हो जाता है और military rule start हो जाती है. Okay, तो this is not correct to say कि सारे के सारे countries जो हैं वो वहाँ पर democratic हैं. So for the second answer we will write the statement A is wrong. It is wrong कि all the countries in South Asia are democratic. Okay, and now the second we will read out all the sentences. The second sentence statement is Bangladesh and India have an agreement on river water sharing. Yes, this is true because both the countries are having agreement regarding river water sharing. And then SAFTA was signed in 12th SAARC summit in South Asian politics, South Asian Free Trade Area. It was signed in the 12th SAARC summit. This is also correct. Okay, and though now this SAFTA has also shifted to chapter 4. अब इस ये chapter 5 में नहीं है. And then the next sentence statement is the US and China play an influential role in South Asian politics. This is also correct because we have seen कि दोनों जो हैं they are the outside players in South Asia. Okay, and now comes the second question, third question. The third is a question. It's what are some of the commonalities and differences between Bangladesh and Pakistan in their democratic experiences. क्या इन दोनों के बीच में कॉमन है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस रहा है इसमें क्या कॉमन है और क्या डिससिमिलर है, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, ये क्वेश्चन है. तो वी विल सी कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज लाइक बोथ in both the countries, Bangladesh and Pakistan, what we find कि they were under a military rule. जब तक वहाँ पर military rule रहा, जैसे कि बांग्लादेश में भी 1991 के पहले तक military rule रहा, उसके बाद वहाँ डेमोक्रेसी आई और पाकिस्तान में भी military rule जो था वो prevail कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में similarity है कि both were under a military rule. So for answer number 3 we will write similarity first or commonality. Similar सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी. क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी फर्स्ट सिमिलैरिटी यही है कि बोथ वर अंडर मिलिट्री रूल. ओके, एंड अगर हम लोग सेकेंड सिमिलैरिटी देखें तो ये देखेंगे कि इन बोथ द कंट्रीज देयर वर स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. दोनों ही कंट्री में लोगों का
स्ट्रगल हुआ, हालांकि जो स्ट्रगल का फॉर्म था वो डिफरेंट था, इंटेंसिटी डिफरेंट थी, बट दोनों ही कंट्री में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल, लोगों का स्ट्रगल हुआ. सो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी by common people. And now we will see the third point. The third similarity between these two countries is Pakistan's administration began under the command of General Ziaul Haq, General Ayub Khan, है ना. अयूब खान के रूल में, उनके कमांड में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, एंड देन ही गेव अप ड्यू टू dissatisfaction among people, and then Yahya Khan became the military ruler, and then he continued with this military rule, and elections were also held, और इलेक्शन करवा के मिलिट्री रूलर जो था उसको एक डेमोक्रेटिक शेप देने की कोशिश की गई याहिया खान की तरफ से. और इसी तरह से बांग्लादेश में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान, हु वाज द प्रेसिडेंट, who was the leader of the movement for freedom, जो फ्रीडम, बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट हो रहा था उसमें उन्होंने, शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया. उसके बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिस शेख मुजीबुर रहमान, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन ही चेंजेस इट. वो सिस्टम को चेंज कर देते हैं और प्रेसिडेंशियल सेटअप में ला करके पार्टीज को भी अबॉलिश कर देते हैं. तो एक तरह से डेमोक्रेसी का एंड कर दिया जाता है बाई शेख मुजीबुर रहमान. बट उसके बाद क्या होता है कि उनका असैसिनेशन हो जाता है, और उनके असैसिनेशन के बाद जियाउर रहमान जो होते हैं वो आ जाते हैं, रूल करते हैं, और वो अपनी पार्टी बनाते हैं. और 1979 में इलेक्शंस भी होते हैं जिसमें वो जीत जाते हैं, लेकिन फिर से उनका असैसिनेशन होता है, फिर से HM साथ जो होते हैं वो बन जाते हैं लीडर. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दोनों कंट्रीज में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, अगर उस डेवलपमेंट जो इवेंट्स हुए उनको हम देखें तो बहुत कुछ सिमिलैरिटी दोनों में हमें देखने को मिलती है. तो सिमिलैरिटी, द थर्ड पॉइंट इज ऑलमोस्ट similar type of events in political life. पॉलिटिकल लाइफ में जो इवेंट्स हुए वो बहुत कुछ मिलते जुलते हैं. जिस तरह से वहाँ अयूब खान, देन याहिया खान आते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक डिक्टेटर का फॉर्म ले लेते हैं, एंड देन वी सी की आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान जियाउर रहमान आते हैं, देन जियाउर रहमान के बाद फिर HM साद आते हैं. तो ये सब कुछ हमने ये सिमिलैरिटी है, बट देयर आर सम डिससिमिलैरिटीज ऑल्सो. ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सब मिलती ही हैं, बल्कि इनके बीच में कुछ डिससिमिलैरिटी भी हमें देखने को मिलती है. एंड व्हाट आर द डिससिमिलैरिटीज? दीज आर द सिमिलैरिटीज. सो नाउ द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिससिमिलैरिटी. ओके, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर हम डिससिमिलैरिटी देखते हैं तो वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि जो जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में वो कौन है? वो है लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेट्स, मिलिट्री, क्लर्जी. वो सब जो है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिक्स पे सबसे ज़्यादा है. जबकि बांग्लादेश में अगर हम देखते हैं तो लीडर्स और पार्टी मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
अगर मिलिट्री रूलर भी आ रहा है तो वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ले रहे हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो नेचर है दोनों जगह पे मिलिट्री रूल का, वो नेचर में डिफरेंस है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ मिलिट्री रूल। अगर पाकिस्तान के मिलिट्री रूल में हमें क्लर्जी और लैंड ओइंग ग्रुप का इन्फ्लुएंस दिखता है, तो बांग्लादेश की जो मिलिट्री रूल है उसमें हमको क्या दिखता है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पार्टीज हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है। ओके, एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज कि प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैव बिकम मोर पावरफुल ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में वी हैव सीन कि अगर मिलिट्री रूल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो उसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप होना। अगर इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होता तो शायद पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं होती, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट इन बांग्लादेश व्हाट वी सी कि प्रो मिलिट्री ग्रुप्स आर पावरफुल एंड दे हैव a good relationship with India, because बांग्लादेश का जो स्टार्टिंग ही हुई थी, उनकी बर्थ जो हुई बांग्लादेश की, वो इंडिया की ही वजह से हुई। तो वी कैन से कि रिलेशन विथ इंडिया भी अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस है। दो वी हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज विथ बांग्लादेश ऑल्सो, बट वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं उसके साथ साथ कोऑपरेशन के भी इश्यूज हैं, बट पाकिस्तान के साथ सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज ही हमारे हैं। एंड द थर्ड सिमिलैरिटी वी कैन से दैट बांग्लादेश मूव्ड ऑन डेमोक्रेटिक पाथ after the end of Cold War. But Pakistan remained non-democratic till 2008। ओके, तो जहां पर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 91 से ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल डायरेक्शन में शुरू हो गई थी, वहीं अगर हम बांग्लादेश को देख रहे हैं तो वहां पर, पाकिस्तान को देख रहे हैं तो वहां पर डेमोक्रेटिक रूल होता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उस रूल को ओवरथ्रो कर दिया जाता था। जैसे कि हमने देखा परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया। इसी तरह से ये चीज़ें होती रही और जाकर के 2008 से वहाँ पर सिचुएशन जो है वो चेंज होना स्टार्ट होते हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। तो दिस आर द dissimilarity between the military rule in Pakistan and Bangladesh. Now the next question is, name the principal players in the ethnic conflict in Sri Lanka. How do you assess the prospect of the resolution of this conflict? So in answer to this question, we will say that the principal players in the ethnic conflict in Sri Lanka are Tamils and Sinhalas, है ना। यही दो कम्युनिटीज थी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था श्रीलंका में। और इसके पीछे रीजन ये था कि जो सिन्हलास थे दे वर इन मेजॉरिटी और तमिल्स जो थे दे वर इन माइनॉरिटी। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर was Sinhalas belonged originally to Sri Lanka, जबकि तमिल्स जो थे they were migrated from India originally। जो भी तमिल हमें वहाँ पर दिखते हैं श्रीलंका में वो इंडिया से ही माइग्रेटेड तमिल हैं। तो ये जो दोनों कम्युनिटी हैं इनके एक तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हो जाती है, एंड देन ओरिजिन
की बात हो जाती है। इन दोनों रीज़न से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया और सिन्हला एंड तमिल्स, और जो गवर्नमेंट थी उसने जो कुछ इस तरह के अपने प्रायोरिटीज फिक्स किए, जिसमें कि जो सिन्हलास थे उनको प्रेफरेंस दिया गया और तमिल्स को नेग्लेक्ट किया गया, एंड दैट वाज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। एंड in order to solve the solution, solve the problem, what is the solution of this problem? The solution is only democracy. अगर डेमोक्रेसी को ट्रूली इन अ मीनिंगफुल मैनर डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश, देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी वैनिस्ड। एंड वहाँ हो चुका है, डेमोक्रेसी जो है वहाँ स्टेबल रही है, और आज की डेट में हम कहेंगे कि वहाँ पर सिविल वॉर वाली कंडीशन नहीं है, पीस आ चुका है। एंड डेमोक्रेसी के साथ साथ जो अनदर इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है, अदर देन डेमोक्रेसी, इट्स डेवलपमेंट। ओके, डेमोक्रेसी तो के साथ साथ डेवलपमेंट भी वहाँ बहुत अच्छा हुआ है। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी का जो लेवल है, जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊंचा है वहाँ पे। तो यही तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि इकोनॉमी से बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं होती। अगर इकोनॉमी हमारा ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ पूरी कंट्री का जो ग्रोथ है वो होना ही होना है। तो दिस इज द solution of the problem. And now we come to the next question, that is the question number 6. And in this question number 6 we see the question is mentioned, some of the recent agreements between India and Pakistan, can we be sure that the two countries are well in their way to a friendly relationship? So we see कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ मेन इशू इज कश्मीर, तो जिसके कारण इनके बीच का रिलेशन हमेशा ही खराब रहा है। बट इन सब के बावजूद खराब रिलेशन है, हमारे बीच में 4 times वॉर हो चुके हैं, स्टिल देयर इज एफर्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, एंड इन दैट डायरेक्शन बोथ द कंट्रीज हैव agreed to undertake confidence building measures। एक दूसरे के तरफ हमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, सस्पिशन का जो एटमॉस्फेयर है उसका एंड करना है, और कॉन्फिडेंस के एटमॉस्फेयर को बिल्ड करना है, ताकि जो फियर ऑफ वॉर होता है वो ना हो सके और पीस जो है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा वी ऑल्सो सी कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट्स हमारे हैं, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आंसर 6, द मेन पॉइंट्स जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, and other than this the social activist and social activists and famous personalities, they are also creating a atmosphere of friendship. Other than these other
efforts also, like bus routes have also been opened up between the two countries. Now bus services have also been started. Then trade between these two countries are also increasing, which is very important to normalize the relationship. अगर हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन होगा तो जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप के वो भी अपने आप इम्प्रूव करेंगे. देन अब आज के समय में दोनों ही कंट्रीज बात के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि वीज़ा जो है वो इजीली मिल सके. एंड ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो हमारी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी हो रहे हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स व्हाट वी आर सीइंग कि बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इज नॉट देयर. हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मतलब हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. आज भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स जो हैं वो वैसे ही की वैसी हैं. टेररिज्म की प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम, ये चीज़ें जो हैं वो आज भी हमारे बीच के रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं. ओके, सो जो कॉन्फिडेंस ये जो एफर्ट्स हैं दोनों कंट्रीज़ की तरफ से रिलेशन को इम्प्रूव करने में, उसमें हम जो थर्ड पॉइंट है वो हम डालेंगे बस रूट. देन फोर्थ इज ट्रेड रिलेशनशिप. देन वीज़ा हैज़ ऑल्सो द प्रोसेस हैज़ बिकम ईजी, है ना. तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी अपनी जगह वैसे ही बने हुए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. This is answer number 7. So the question is mention two areas each of cooperation and disagreement between India and Bangladesh. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो कौन से दो एरियाज हैं. कोई भी दो एरियाज आपको बताने हैं जिनको लेकर हमारे बीच में कोऑपरेशन है, और कोई भी दो एरिया जिनको लेकर के हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. एरिया किन मामलों में हम आपस में कोऑपरेट करते हैं. तो वी सी कि इकोनॉमिक रिलेशन एंड ट्रेड रिलेशन, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो यही होता है, इकोनॉमिक एंड trade relation. Other than this, we see कि we have also we are trying to improve our relationship with Bangladesh, because Bangladesh is part of India's look east policy, है ना. हमने जो पॉलिसी अपनाई है कि ईस्ट की तरफ लुक देखना, अब ये लुक ईस्ट जो है वो एक्ट ईस्ट की बन चुका है. तो हम इस लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए हम साउथ ईस्ट एशिया पहुंचना चाहते हैं वाया म्यांमार, और म्यांमार पहुंचने के लिए हमने बांग्लादेश को एक उसकी तरफ पहले देखना शुरू किया है. तो जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, this policy is also causing good relationship between the two countries. Then we have cooperation on the issues of disaster management and environment. Disaster management and environment. Okay. And then we have also cooperation with Bangladesh on we cooperate on identify common threats
and being more sensitive to each other's need. क्या है हमारे कॉमन थ्रेड, क्या है? टेररिज्म, है ना, टू फाइट टेररिज्म. दैट इज द फोर्थ एरिया ऑफ कोऑपरेशन, टू फाइट अगेंस्ट terrorism. So these are the areas of cooperation. Other than this, we have some areas of conflict also. तो conflict हमारा कहाँ है? Conflict हमारा है river water share करने में. We have seen कि हमारे बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही रिवर को शेयर करने के मैटर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है. Okay. And other than this, we have also conflict regarding the refusal to allow Indian troops to move through its territory. Bangladesh does not give permission to Indian troops to move through its territory, है ना, अपनी टेरिटरी को यूज करने नहीं देती है. देन ये नेचुरल गैस जो है उसको भी अपने कंट्री से एक्सपोर्ट हमारे यहाँ नहीं करती है. इंडिया चाहती है इंपोर्ट करना, बट वो एक्सपोर्ट नहीं करती है इंडिया को. एंड देन इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि बहुत ही हमेशा का ही प्रॉब्लम रहा है हमारा बांग्लादेश के को लेकर के. तो कॉन्फ्लिक्टिंग में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है रिवर वाटर शेयरिंग. एंड अदर देन दिस, प्रॉब्लम ऑफ immigration, then export of gas, natural gas, then movement of troops, Indian troops. So these are the areas of conflict between India and Bangladesh. So we have completed up to question number 7, and the remaining questions will be discussed in the next class.